Hello everyone, welcome back to the session. In this particular session, we are going to again add some more animation techniques for our logo. So in the previous session, we have added some new techniques into our skills. That was how to use the track matte effect to generate some cool effects for your logo, how to reveal them using the track matte, and we have gone through some new tool like the rough edges, that how we can create an ink splash kind of effect for a particular logo reveal. So in addition to your logo animation techniques, we are going to start with a new kind of effect, that is the glitch effect. If we have gone through different techniques of logo, so you might have seen this particular technique very often in all the technical fields where we are going to add glitch effect to a particular logo. And in that particular thing, mostly the gamers use a lot of glitch effect for their particular logo animations or in between their video transitions also. So this glitch effect is very much popular and we can use it for revealing our logo also, right? So let's start with our particular logo animation. For that, I'm going to bring a new project. Let me increase the duration from 5 to 10 seconds and create something new. Let me bring back my image. Again, we are going to continue with this image only. Now let's add a fill color. Currently my requirement is that I want to go for the white color background, white color for the logo. And now let's add some scale animation here. For example, currently the final output is 30. So let's suppose keep for last 6 seconds your animation will keep on running. And now decrease the scale property from 25, sorry, 30 to 20. So let's see. Okay, great. So again we can manually adjust the speed by using the graph editor also. So that is starting slow, in between fast, and then smoothly ends the animation. या फिर इसका opposite, let me have a quite fast ending. There should be smooth animation in the starting, and after that there should be, yes, let me just again okay, great. So now I have created the animation for this particular property, that is the scale. Now after that, what I'm going to do is I'm going to create a pre-comp out of it. So I will select this layer. After that we will pre-comp this particular layer. अब इसको pre-comp करने के बाद इसको rename कर देते हैं logo. So logo को rename करते हैं. Then let's go to our final visuals. So okay, great. Let's reduce the duration a little bit. I think it's quite slow. So instead of 6 seconds, let's keep it to 4. And yes, great. I think we can decrease it a little bit more, like 3 seconds duration will be more than enough. Okay, great. So after that, what I'm going to do is I'm going to create a new solid layer. The shortcut key is Control plus Y, as you all know. After that, I'm going to rename it as a noise. In this particular solid layer, I will choose the black color only. So after choosing the solid color,
I'm going to add one new effect, that is the fractal noise. तो fractal noise को हम यहाँ पे add करते हैं just because if you have seen or you have gone through glitch effect, then you might have seen that during the glitch effect there are some proportions which get detached from the original layer and they separate from the original points, right? जैसे आप कोई भी ग्लिच इफेक्ट देखोगे तो वहां पे आप देखोगे कि वो अपने ओरिजिनल शेप से थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाता है, कभी लेफ्ट कभी राइट कभी टॉप कभी बॉटम, राइट? तो अपने पार्ट्स को कैसे डिवाइड करके स्ट्रेच आउट हो जाता है, सेम यहाँ पे भी हम उस पर्टिकुलर पार्ट को कैसे स्ट्रेच आउट करें उसके लिए एक प्रोपोर्शन क्रिएट करते हैं. दैट प्रोपोर्शन कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग द नॉइस इफेक्ट. Let's turn on the visibility. Let's choose the max option here, and under the max we are going to create some blocks here, right? So we will choose the block option. Now you can see there are certain blocks, right? So these particular blocks, depending upon their transparency or the color, like the white, the grays and the blacks, it will analyze that at which particular part the shape will move, whether it will distort to the left, whether it will distort to the right, right? That can be decided by the color of this particular शेप, राइट? सो यहाँ से हम इसका जो कंट्रास्ट है उसको थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपको मोस्टली ग्रे कलर ही दिख रहा है, राइट? तो इसका कंट्रास्ट थोड़ा हम क्लियर कर देते हैं और आफ्टर दैट ब्राइटनेस को थोड़ा नेगेटिव की तरफ लेके जाते हैं, सो दैट कि यहाँ पे एक अच्छी डेप्थ क्रिएट हो सके. अगर आपकी इमेज में मोस्टली वाइट कलर ही शो हो रहा है या ग्रे कलर शो हो रहा है या ब्लैक कलर शो हो रहा है, इन दैट पर्टिकुलर केस देयर कैन बी सम प्रॉब्लम्स इन डिस्टॉर्शन. तो वो डिस्टॉर्शन की प्रॉब्लम ज़्यादा ना रहे तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने इमेज में, ठीक है, हर एक कलर को मेंटेन करके रखें कि हमारे इमेज में वाइट कलर भी होना चाहिए, ग्रे भी होना चाहिए और कहीं ना कहीं इन बिटवीन ब्लैक भी होना चाहिए, राइट? सो अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ, ये मेरे पास स्टैटिक इमेज है, बट आप जब भी किसी ग्लिच इफेक्ट को देखते हो तो आपने देखा होगा कभी उस पर्टिकुलर पार्ट का, राइट, कुछ पोर्शन कभी यहाँ पे डिस्प्ले होता है एक फ्रेम पे, नेक्स्ट फ्रेम पे कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, राइट? सो जैसे जैसे ब्लॉक्स मूव करेंगे आपकी इमेज में डिस्टॉर्शन होने की पॉसिबिलिटीज भी उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं. अगर वहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं है तो वहाँ पे डिस्टॉर्शन भी नहीं होगी. सो इन ऑर्डर टू ऐड द डिस्टॉर्शन व्हाट विल डू इज विल गो टू द एवोल्यूशन. एंड एवोल्यूशन में क्या होगा कि आपके जितने भी ये कलर्स हैं, शेप्स हैं, राइट, आप देख सकते हो ब्लॉक्स दिख रहे हैं आपको. अब इन ब्लॉक्स में आप देख सकते हो कलर का एवोल्यूशन चल रहा है, मतलब कहीं पे किसी कलर का बर्थ हो रहा है, कहीं पे किसी कलर का डेथ हो रही है, राइट? कभी ब्लैक से वाइट की तरफ जा रहा है, वाइट से ग्रे, ग्रे से दोबारा ब्लैक, राइट? सो वो एवोल्यूशन हम यहाँ से क्रिएट करेंगे. एंड इन ऑर्डर टू क्रिएट दैट एवोल्यूशन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज मैनुअली की फ्रेम ऐड करने से बेटर है that we are going to use a script, that is the time script, right? So what I'm going to do is I'm going to press and hold the alt key, click on the left mouse button, and now I'm going to write the script time into, now the gap can be like 1200, 1500, 1800. it totally depends कि आपको डिस्टॉर्शन कितनी फास्ट या कितनी स्लो चाहिए. सर जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको प्ले करूँ तो आप देख सकते हो डिस्टॉर्शन काफ़ी ज़्यादा फास्ट है. अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो ब्लॉक्स हैं ना, इन ब्लॉक्स से ही डिसाइड होगा कि आपका जो पर्टिकुलर शेप है वो किस पोर्शन में या किस एरिया में आपका वो फिट बैठेगा. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि करंटली मेरे पास स्क्वायर बॉक्स है, बट मोस्टली आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो डिस्टॉर्शन होती है वो थोड़ी स्ट्रेच आउट होती है. तो कुछ केसेस में हो सकता है कि मुझे अपने जो ब्लॉक्स की शेप है वो चेंज करनी पड़ जाए. मुझे हो सकता है वो थोड़ा वाइड इनफ चाहिए, या फिर हो सकता है कुछ पोर्शन में मुझे उसकी हाइट ज़्यादा चाहिए. तो in order to achieve that, what I will do is I will select the transform option, and under the transform option I am going to click on the scale property, right? एंड यहाँ से यूनिफॉर्म स्केलिंग को हम बंद कर देंगे, बिकॉज अगर यूनिफॉर्म स्केलिंग ऑन रहेगी तो हर
ब्लॉक का शेप सेम रहेगा, दैट इज वो स्क्वायर में ही रहेगा, बट मुझे चाहिए कि यहाँ पे हो सकता है मुझे रेक्टेंगल में चाहिए, राइट। सो इन दैट पर्टिकुलर केस आई एम गोइंग टू अनचेक दिस, एंड इसकी हाइट हम अपने अकॉर्डिंगली बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, विड्थ राइट, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का इफेक्ट क्रिएट करते हो। जैसे यहाँ पे मैं इसकी हाइट कम से कम रखता हूँ और विड्थ पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, राइट। सो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, राइट, ओके, यहाँ तक हमारा स्टेप एकदम क्लियर है। आफ्टर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, अगेन मैं इस पर्टिकुलर लेयर को भी क्या कर दूंगा, प्री कॉम। सो हम राइट क्लिक करेंगे एंड प्री कॉम को सिलेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट select move all the attributes to one single layer, right। तो यहाँ पे इसको रीनेम कर देते हैं नॉइस, ओके। after that what I'm going to do is I'm going to create a new adjustment layer। तो adjustment layer अपने में बहुत ही एक interesting topic है। we have already done that what is the shape layer, we have done what is a solid layer, we have done what is the text layer। तो उसी एक लेयर की टाइप है adjustment layer। if some of you are very much familiar that what is adjustment layer, that is good thing. If you are not, then need not to worry because I'm going to let you know। adjustment layer हमारी एक ऐसी लेयर होती है जिसकी अपनी खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। स्पेसिफिकली जैसे आपके पास शेप लेयर है, तो शेप की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे उसमें कलर का ऑप्शन रहता है, उसमें सॉलिड कलर फिल करना है, राउंड ग्रेडियंट फिल करने हैं, दैट इज ऑल इन दैट पर्टिकुलर सॉलिड लेयर, सॉरी जो शेप लेयर। सॉलिड लेयर की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसकी हाइट, वेट, राइट। एडजस्टमेंट की एज सच कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं है बेसिकली। तो फॉर एडजस्टमेंट लेयर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू select this particular layer in order to apply the effects all the layers beneath it, which means कि इस लेयर में अगर मैं कोई भी एक इफेक्ट अप्लाई करता हूँ, जैसे यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं फिल लेयर एक चूज करता हूँ, फिल इफेक्ट, और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि जितने भी लेयर्स इस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट लेयर के नीचे होंगे, हर एक लेयर में वो इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। तो हमें इंडिविजुअली हर एक लेयर पे जाके सेम इफेक्ट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट कर सकते हैं, एंड आफ्टर क्रिएटिंग द एडजस्टमेंट लेयर जो भी हमारी डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं, जो हम चाहते हैं कि जो भी इफेक्ट में अप्लाई करना चाहता हूँ मल्टीपल लेयर्स पे, राइट, तो हम वो यहाँ पे कर सकते हैं। मोस्टली हम ये इसको ट्रांजिशंस के लिए भी बहुत यूज़ करते हैं। इन वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एडजस्टमेंट लेयर, यहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं, और यहाँ पे इसका यूज़ कुछ अलग पर्पस में होगा। तो इसको यहाँ पे डिलीट करते हैं, एडजस्टमेंट लेयर को नीचे लेके आते हैं, एंड जो हमारे पास नॉइस का कॉम्प है उसको हम थोड़ी देर हाइड आउट करते हैं, राइट। तो नाउ अब मैं एडजस्टमेंट लेयर में जाता हूँ, एंड यहाँ से हम अब मैंने अपनी तरफ से एक शेप, एक कलर तो डिसाइड कर लिया कि ये पर्टिकुलर शेप रहेगा, और इस पर्टिकुलर शेप में ये कलर के अंदर ही कुछ पोर्शंस में मेरा जो लोगो है वो रिवील होगा या हाइड होगा या मूव करेगा, वो तो हो गया, बट वो कैसे उसके अंदर फिट कराएं, फॉर दैट वी विल बी क्रिएटिंग अ न्यू इफेक्ट दैट इज टर्बुलेंस, सॉरी टर्बुलेंस तो हम ऑलरेडी मेरे ख्याल से ऐड कर चुके हैं। नाउ वी विल गो टू displacement map। so this displacement map will let you fit your image into different proportions based upon the color, the intensity, the shape, right। so यहाँ पे displacement map को हम drag and drop करते हैं अपने adjustment layer के ऊपर। after that let me go to this particular डिस्प्लेसमेंट मैप लेयर ऑप्शन, एंड यहाँ से हम चूज़ करेंगे नॉइस। नॉइस मतलब जो हमने वहाँ पे प्रोपोर्शंस क्रिएट किए थे
मैं चाहता हूँ उस प्रोपोर्शंस में मेरा जो लोगो है वो फिट होना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो थोड़ी सी यहाँ पे डिस्टॉर्शंस आपको दिख रही हैं। अगर मैं इसको हाइड आउट कर दूँ तो पहले हमारे पास बहुत हार्ड एजेस थे, बट अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो शेप है मेरी वो थोड़ी बहुत डिस्टॉर्ट होनी शुरू हो गई। अब इसकी डिस्टॉर्शन मैं खुद भी कंट्रोल कर सकता हूँ बाय एडजस्टिंग दी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो इसको अगर मैं मूव करूँ यहाँ पे तो आप देख सकते हो उसके अकॉर्डिंगली राइट। अब यहाँ पे हमारा क्रिएट हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, लेट्स टेक अ गैप ऑफ 15 फ्रेम्स। सो हम 15 फ्रेम्स का गैप लेते हैं यहाँ पे एंड आफ्टर दैट अपने इस एडजस्टमेंट लेयर को ट्रिम कर देते हैं। ऑल्ट प्लस स्क्वायर ब्रैकेट्स क्लोज टू ट्रिम आर पर्टिकुलर लेयर। आफ्टर दैट अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ मूव करना शुरू कर दूंगा। कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करता हूँ और उसको इन बिटवीन, सो दैट की ये डिस्टॉर्शन जो है वो ज़्यादा ही रियलिस्टिक लगे। तो कहीं पे गैप ज़्यादा हो सकता है, कहीं पे गैप कम हो सकता है, टोटली आपकी अपनी राइट। तो यहाँ पे एक बार इसको प्ले करके देखते हैं एंड व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट वी आर गेटिंग। स्टार्टिंग से इसको रिमूव करते हैं सो दैट कि स्टार्टिंग से लोगो मेरा नॉर्मल ही रहे एंड आफ्टर दैट उसको थोड़ा डिस्टॉर्ट होने देते हैं। राइट, यहाँ तक रख के एन और अपने कॉम्पोजिशन एरिया को थोड़ा ट्रिम कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास कुछ इस तरीके से ग्लिच इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। बट इसको थोड़ा और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाने के लिए व्हाट वी कैन डू इज we can simply select our particular logo and let's duplicate it। तो आपने बेसिकली देखा होगा कि अगर मैं प्रोपोर्शन वाइज बात करूं तो हमारा जो ग्लिच इफेक्ट है काफ़ी हद तक सही क्रिएट हो चुका है, बट स्टिल आप लोगों ने देखा होगा कई ग्लिच इफेक्ट्स में आपको उसके एजेस पे कभी रेड कलर दिखता है, कभी ब्लू, कभी मेजेंटा, कभी ग्रीन, राइट। दैट टोटली डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ कलर यू आर सिलेक्टिंग, राइट। तो यहाँ पे भी सेम काइंड ऑफ इफेक्ट हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। For that what we have to do is we have to first go through। अब यहाँ पे भी एक चीज़ और आपको बता दूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो आपके पास आपने वैल्यू भरी थी, आप चाहे इसको भी एनिमेट कर सकते हो एंड इसको अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। मतलब जहाँ जहाँ पे आपको की फ्रेम्स का ऑप्शन मिल रहा है तो आप प्लीज़ वो लगा के एक्सप्लोर ज़रूर कीजिएगा एक बारी कि आप उसमें से और क्या क्या चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। जैसे इसको अगर मैं यहाँ पे कर दूँ और इसको यहाँ पे, राइट। सो हम देख सकते हैं यहाँ पे, राइट, ग्रेट। तो अगेन नाउ कमिंग बैक टू द कलर ऑप्शन, अपने लोगो वाली लेयर को हम डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ से हम स्पेशली जाते हैं अपने इफेक्ट्स एंड प्रीसेट पैनल में एंड अंडर द इफेक्ट्स एंड प्रीसेट पैनल व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टाइप अरिथमेटिक, राइट। तो जो पहला इफेक्ट है हमें वही सिलेक्ट करना है एंड इसको मैं सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ अपने इस पर्टिकुलर लेयर के ऊपर। now we are having certain values here, we have red channel, green channel and blue channel। so basically ये आपके तीनों चैनल्स जिनको कंबाइन करके हमें एक यूजली कलर मिलता है, राइट। तो हम इसको इंक्रीज या डिक्रीज करके वैल्यूज को आपस में एक दूसरे के साथ शिफ्ट करवा के हम
अपने कुछ प्री डिफाइंड कलर चूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे रेड, अगर मैं रेड इंक्रीज कर दूँ टोटल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास कौन सा सियान टाइप ऑफ टोन मिल रहा है। ग्रीन कर दूँ तो मुझे मैजेंटा मिल रहा है, राइट। ब्लू कर दूँ तो मुझे यहाँ पे येलो काइंड ऑफ मिलता है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू है और हम इसके ऑपोजिट में जा रहे हैं बिल्कुल। तो अगर मैं यहाँ पे ब्लू और येलो को ऐड ऑन कर दूँ तो मुझे ग्रीन कलर मिल जाएगा। ब्लू या फिर रेड एंड ग्रीन को करूँ तो मेरे पास स्पेसिफिकली ब्लू मिल जाता है, बट लेट्स स्टिक टू सियान ओनली। तो इसको हम डुप्लीकेट करते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे मेरे पास इसको मैं दोबारा ओरिजिनल स्टेट पे लेके आता हूँ एंड देन हम इसको अगेन ब्लू को इंक्रीज करते हैं एंड देन लेट्स ऐड ग्रीन टू इट। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से रेड चैनल भी आ जाए। तो उसके बाद इसको दोबारा डुप्लीकेट करते हैं एंड नाउ लेट्स कम बैक टू आर मेजेंटा टोन ऑल्सो। तो यहाँ पे अब मुझे आप देख सकते हो कि मेजेंटा टोन भी यहाँ पे ऐड ऑन हो चुका है। तो ये हमारे पास 3 अलग अलग कलर्स के लोगो आ चुके हैं। ओरिजिनल लोगो को ज़रा हम रीनेम कर लेते हैं सो दैट वी डोंट मिक्स इट अप। So one by one what I'm going to do is I'm going to select all these layers and now I'm going to change the blending mode from normal to let's take it to screen, right। अब screen यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया है तो उसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं या फिर इसको मल्टीप्लाई ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल है सबसे बेस्ट, राइट। सो इसको अगर मैं नीचे लेके जाऊँ इनके तो कुछ इसके डिस्टॉर्शंस में आपको दिखेगा, बट अभी इतनी क्लैरिटी नहीं है, बट स्टिल। So just let's keep it to screen only. Then after that what we have to do is हमें इसकी पोजीशन के साथ थोड़ा प्ले करना पड़ेगा। जैसे इसको अगर मैं P प्रेस कर दूं, इन सब पे P प्रेस करके रखते हैं एंड इनको थोड़ा मूव कर लेते हैं लेफ़्ट और राइट अकॉर्डिंग टू आवर ओन रिक्वायरमेंट। तो जैसे यहाँ पे मेजेंटा को मैं लेफ़्ट की तरफ मूव कर लेता हूँ और थोड़ा सॉरी राइट की तरफ एंड थोड़ा सा इसको नीचे। सेम वे अब इसको एक बार रीनेम भी कर लेते हैं ताकि हमें कलर के थ्रू याद रहे। magenta done. Now then we have the next color, most probably it is going to be red। तो इसको मूव करते हैं लेफ्ट की तरफ, पोजीशन अप एंड डाउन अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं हम, राइट। देन वी हैव दी अगेन इसको भी रीनेम कर लेते हैं, दैट विल बी मच बेटर, रेड। एंड देन द लास्ट वन आई थिंक इट वाज cyan ओनली। तो लेट मी चूज द cyan एंड अगेन इसमें भी हम देखते हैं हमें कौन सा कलर, राइट। नाउ अभी मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि जहाँ जहाँ पे मेरे एडजस्टमेंट लेयर की विजिबिलिटी है मैं चाहता हूँ ये सारे लेयर सिर्फ वहीं पे रहें। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से इनको ट्रिम कर लेता हूँ, ऑल्ट प्लस स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन। ओके, किसी भी लेयर के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट में अगर आप शिफ्ट होना चाहते हो, मतलब एक तो मेथड है कि आप फ्रेम बाय फ्रेम पेज डाउन करके या पेज अप करके उसको मूव करो आगे पीछे, या एक मेथड है कि आप मैनुअली इसको स्लाइडर को ड्रैग करके उसको लास्ट पॉइंट तक लेके जाओ। बट कई बार क्या होता है कि हम अपने टाइमलाइन में अगर जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं तो उस केस में क्या होता है कि कई बार प्रोपोर्शंस का थोड़ा डिफरेंस आ जाता है और कई बार हमें इतने फ्रेम में भी लगता है कि हाँ भाई ये लास्ट पोर्शन ही एड ऑन है। जैसे यहाँ पे अभी हमें लग रहा है कि हाँ बिल्कुल इसके लास्ट पॉइंट पे हमने सेलेक्ट किया हुआ है, बट एक्चुअल में जब जूम इन करेंगे तो देखेंगे कि एक फ्रेम का डिफरेंस है। तो वो एक फ्रेम का डिफरेंस भी बहुत आपको इम्पैक्ट डाल सकता है आपकी एनिमेशन में। So in order to avoid these kind of mistakes, what we can do is simply select the layer, उसके इन पॉइंट पे जाना तो आई प्रेस करो,
आउट पॉइंट पे, मतलब जो उसका एंडिंग पॉइंट है उस पे जाना है तो ओ प्रेस कर दो, राइट। तो उसको यहाँ पे हम जाके ओके, एंड देन अगेन ऑल्ट प्लस स्क्वायर ब्रैकेट्स, थोड़ा इसको यहाँ पे ट्रिम, एंड अगेन इनको अपने अकॉर्डिंगली शिफ्ट कर लेते हैं, कंट्रोल डी करते हैं डुप्लीकेट, देन अगेन इसको मूव करते हैं, परफेक्ट, अगेन कंट्रोल डी, लेयर्स ऊपर, again control D and keep on adding till we align them with the adjustment layer। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट एनिमेशन हो चुकी है। तो एक बार इसका प्रीव्यू लेके देखते हैं कि हमारे पास किस टाइप का आउटपुट आया है यहाँ पे। राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने अपना जो ग्लिच इफेक्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद व्हाट वी कैन डू इज टू बी मोर इम्पैक्टफुल, वी कैन ऐड अ साउंड इफेक्ट ऑल्सो, जो हमारे उस ग्लिच इफेक्ट को थोड़ा और इम्पैक्ट क्रिएट करे। तो इसको एक बार सुन लेते हैं पहले। राइट, ओके, देन अगेन इसको सबसे नीचे लेके आते हैं जस्ट फॉर द प्लेसमेंट पर्पस ओनली। आई थिंक सो बाय मिस्टेक मैंने शायद एडजस्टमेंट लेयर को मूव कर दिया, बट चलो एनी हाउ इसको दोबारा प्लेस करते हैं यहाँ पे। इसको यहाँ से ट्रिम करते हैं, अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो भी वो हमारा वो जाएगा। देन अगेन कंट्रोल डी एंड कीप ऑन मूविंग इट till we align it with the adjustment layer। तो यहाँ पे right, so let's have a quick playback of our video। Great, so now I think so it is very much clear to you that how we can create some glitch effect for technical kind of companies, like हमारे पास कुछ टेक बेस्ड कंपनीज होती हैं या कुछ गेमर के प्रोफाइल्स होते हैं जिनको लोगो एनिमेशन चाहिए होता है, तो उन पे ग्लिच इफेक्ट सबसे सूटेबल रहता है। तो आप उस इफेक्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, होप सो आपको थोड़ा आइडिया होगा। अब जैसे जैसे आपके टास्क बढ़ते जा रहे हैं, हम न्यू न्यू टॉपिक्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, यू माइट हैव नोटिस हमारी जो टाइमलाइन में लेयर्स हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे करंटली जो मेरे पास लेयर्स हैं, इसकी भी आप देख सकते हो कि ऑप्शंस जो हैं या फिर लेयरिंग है कैसे इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे। तो ऐसे ही आपका प्रोजेक्ट भी होने वाला है, जैसे जैसे आप अपने स्किल्स न्यू पॉलिश करते जाओगे, कोई न्यू स्किल ऐड ऑन करते जाओगे, वैसे ही आपके लेयर्स भी इंक्रीज होते जाएंगे। एंड आप देख सकते हो कि करंटली वी आर हैविंग सो मैनी प्री कॉम्स ऑल्सो। तो सेम आपके प्रोजेक्ट में भी धीरे धीरे प्री कॉम्स काफ़ी ज़्यादा ऐड होने वाले हैं। सिंगल लेयर से आप कब प्री कॉम्स में शिफ्ट हो जाओगे आपको पता भी नहीं लगेगा, राइट। तो दैट वाज ऑल फॉर द टुडेज सेशन, राइट, कि कैसे हम ग्लिच इफेक्ट अपने किसी भी लोगो में, किसी भी आप टेक्स्ट में भी ये सेम चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट कि वी आर लिमिटेड टू यू नो जस्ट graphics or to shapes only, we can apply it directly on the text layers also। So you can apply and
look after this particular effect, and you can create some your own effects also. So this was all for today's session, and we will start with something new in the next session. Okay everyone, see you in the next class.